Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Miss Sidra Izhar and I am your science teacher. I welcome you all in class 6. Students, hopefully you will listen to the lecture carefully. In first term, we will study 4 chapters. Chapter number 1, cells, tissues and organs. Chapter number 2, atoms, molecules, mixtures and compounds. Chapter number 3 is energy and chapter number 4 is photosynthesis and respiration. Let's have a look at the learning objectives of chapter number 1. Cells and its parts, structure of plant cell and animal cell, specialized plant cells and animal cells, unicellular and multicellular organisms, tissues, organs including plant organs, human organ systems, microscope and its parts. Cell and its part. All living things from the tiniest creatures to the tallest of trees are made up of microscopic parts called cells. Living things can be made of just one cell or have many. Whether it's a plant or animal, cells are the basic structures they are composed of. We can define cell as the basic unit or building blocks of life. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने हुए होते हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, सेल. माइक्रोस्कोपिक यूनिट का मतलब क्या है कि ऐसे यूनिट जिनको हम या ऐसी चीज़ जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते बल्कि उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना होता है. Although there are different types of cells that have different jobs to do, most cells have something in common. For now we will be dealing with two types of cells. First one, plant cell, and second one is animal cell. Let's have a look at the parts of cell. First part of a cell is cell membrane. Cell membrane is also known as plasma membrane and it surrounds the cell. Cell membrane controls the movement of substance in and out of the cell. This membrane is semi-permeable, means it only allows selective particles to enter into the cell. इनकी सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक आउटर कवरिंग है जिसने सेल को सराउंड किया होता है और इसका काम क्या है कि ये सब्सटेंस की मूवमेंट को कंट्रोल करती है. और इसके साथ साथ ये सेमी परमेबल है. सेमी परमेबल का मतलब क्या है कि ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स और कुछ सिलेक्टिव आइंस को सेल के अंदर अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर एंटर हो सकें. सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ सेल इज साइटोप्लाज्म. Cytoplasm is a jelly-like substance. It is usually colorless. It is present between the cell membrane and nuclear membrane and it is about 80% of water. Cell organelles are found floating in it. Most of the important activities of the cell occur in the cytoplasm, like breaking down of waste and formation of energy. Cytoplasm एक jelly-like substance होता है जिसके अंदर cell organelles मौजूद होती हैं. सेल ऑर्गेनल्स क्या होती हैं? सेल जो कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्ट है, सेल के अंदर सेल से भी छोटे साइज़ के स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं जिनको ऑर्गेनल्स कहा जाता है और हर ऑर्गेनल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं लाइक फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वेस्ट, ये सारी की सारी साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं. साइटोप्लाज्म इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अ सेल इट्स शेप. नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज़ न्यूक्लियस. Nucleus is the control center of a cell and it acts like a brain. It is a double membrane bound organelle. The nucleus contains DNA, which is a genetic material that determines everything about the cell, that what kind of cell it will be and when will it divide. यानी कि न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर है और इसकी एक ख़ास बात क्या है कि इसके पास जेनेटिक मटीरियल होता है, जेनेटिक मटीरियल which is called DNA, and it transfers from parents to offspring. It is also responsible for cell division and growth too. Structure of plant cell. Before going to describe the structure of plant cell, I would like to define plant cell. Plant cell is a eukaryotic cell with true nucleus along with small specialized objects which are called organelles, and all of them have special jobs to do.
अब हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर लेते हैं कि यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। ऐसे सेल जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं, और इस तरह के न्यूक्लियस को हम ट्रू न्यूक्लियस भी कहते हैं। और सेल ऑर्गेनल्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर सेल से भी छोटे साइज़ के स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेशलाइज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और हर ऑब्जेक्ट का एक अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और इनको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल. फर्स्ट पार्ट इज सेल वॉल. Plant cell have an extra layer which is called cell wall, which surrounds the cell membrane. The cell wall is tough and stronger than the cell membrane, and it provides support for plant to grow and keep their shape. Cell wall is permeable, means it allows all substances to pass through it, and it is made up of cellulose. यानी कि प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको सेल वॉल कहा जा रहा है, और ये इसने सेल मेम्ब्रेन को सराउंड किया हुआ होता है, और इसका मेन फंक्शन क्या है कि प्लांट को शेप प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। और साथ साथ एक और अहम चीज़ कि सेल वॉल परमेबल होती है, ये तमाम सब्सटेंसेस को अलाउ करती है कि वो इससे पास हो सकें। नेक्स्ट थिंग इज़ वैक्यूल्स. Vacuoles are basically for storage that the cell uses to hold water and other materials. A plant cell usually have one large vacuole. Vacuoles are often the largest organelle in plant cell, and when plants do not get enough water, their vacuoles shrink and plants begin to wilt. Vacuoles contain a solution of sugar and salt which is called cell sap. वैक्यूल जो है वो अगर हम देखें तो प्लांट सेल में एक सेंट्रली लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, और ये तकरीबन इसने सेल का 90% वॉल्यूम जो है वो कवर किया हुआ होता है। और इसके अलावा बाकी जो ऑर्गेनल्स हैं वो होते हैं सेल के, मतलब जो भी स्पेस है 90% जो है वो वैक्यूल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और बाकी जो स्पेस रहती है 10% वो रिमेनिंग जो ऑर्गेनल्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनल्स, वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। और वैक्यूल्स का काम क्या है कि ये एक स्टोरेज ऑर्गेनल है, और ये सेल सेप कंटेन करती है। सेल सेप एक शुगर और वाटर का या मिनरल्स का भी कह लीजिए कि सोल्यूशन जो है उसको सेल सेप कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट सेल इज़ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज़ एन ऑर्गेनल which is only found in green parts of plants. And why they are found in green parts of plant? Because they contain a green colored pigment which is called chlorophyll, and function of chlorophyll is to trap heat energy from the sun, and because of that reasons plants are able to prepare their own food by the process of photosynthesis. यानी ये क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ख़ास ऑर्गेनल है जो कि प्लांट्स के सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में पाया जाता है, स्पेशली लीव्स के अंदर, और इसीलिए जो है प्लांट्स के लीव्स को फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है कि ये प्लांट के फूड मेकिंग प्रोसेस में हेल्प आउट करता है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये प्लांट सेल का जो आपने स्ट्रक्चर जिसमें देखा कि सेल वॉल है, वैक्यूल्स हैं और क्लोरोप्लास्ट हैं, तो ये ऑर्गेनल स्पेशली क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल, ये दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं, दो फीचर्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल. This is a diagram of plant cell, and you can see a single plant cell with its different organelles. We have discussed earlier main parts of a plant cell. Now we will see some other organelles and their functions too. First thing is cell wall. The outermost covering of a cell, plant cell, is cell wall. जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रही है, सबसे पहले जो लेयर है, जो कवरिंग है, ये सेल वॉल है, और इसका काम क्या है कि ये प्लांट को शेप प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सेल वॉल के बाद एक और आपको मेम्ब्रेन, एक और कवरिंग और लेयर नज़र आ रही है विच इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। एंड सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन जो है वो, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन सब्सटेंस की मूवमेंट को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट वी हैव साइटोप्लाज्म. Cytoplasm is a jelly-like substance, and different organelles are found floating in the cytoplasm like nucleus. आपको नज़र आ रहा होगा कि न्यूक्लियस है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट है, ये ऑर्गेनल्स हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं।
Next we have chloroplast. Chloroplast is that organelle which is found only in green parts of plants like leaves, और इसका काम क्या है कि ये प्लांट को फूड प्रिपेयर करने में हेल्प आउट करता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है. Next organelle is nucleus. Nucleus is the control center of a cell and it controls all the activities of the cell. नेक्स्ट वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया. आपको एक ओवल शेप की बॉडी साइटोप्लाज्म के अंदर नज़र आ रही हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कि इनको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. इसके बाद राइबोसोम्स हैं. आपको छोटी छोटी सी राउंडेड बॉडीज़ नज़र आ रही हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. दीज आर राइबोसोम्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. नेक्स्ट ऑर्गेनल्स वी हैव इज़ वैक्यूल. आपको नज़र आ रहा होगा डायग्राम में कि देयर इज़ अ सेंट्रली लार्ज वैक्यूल फाउंड इन प्लांट सेल, और इसका काम क्या है कि ये इट इज़ बेसिकली फॉर स्टोरेज एंड इट कंटेन्स सेल्सेप विच इज़ अ सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर. स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल. इन दिस डायग्राम यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल. जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एनिमल और प्लांट सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स एक जैसे हैं, कॉमन हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं इन दोनों में जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अगर हम एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास आउटर कवरिंग या आउटर एक जो लेयर नज़र आ रही है, दिस लेयर इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं. इसका काम सब्सटेंस की मूवमेंट को कंट्रोल करना है. नेक्स्ट वी हैव साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जो कि जेली लाइक सब्सटेंस है और इसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ वैक्यूल्स. अगर आप एनिमल सेल को देखें तो यहाँ पे वैक्यूल्स आपको स्मॉल साइज़ में नज़र आ रहे हैं. तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो हैं एक से ज़्यादा मौजूद होते हैं, बट दे आर नॉट परमानेंट, टेम्प्रेरी होते हैं, और काम इनका भी वही है कि दे आर ऑल्सो फॉर स्टोरिंग पर्पज़. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव न्यूक्लियस, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. देन वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी फॉर्मेशन में हेल्प आउट करना. राइबोसोम्स जो हैं राउंडेड बॉडीज़ प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. और जो गोल्जी बॉडीज़ हैं, गोल्जी बॉडीज़ का काम क्या है कि ये लिपिड्स और प्रोटीन्स को मॉडिफाई करते हैं. बाकी अगर हम शेप को देखें तो एनिमल सेल की जो शेप है वो इरेगुलर है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से एनिमल सेल की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती. So it's all about the structure of animal cell. Differences between animals and plant cell. Both animal and plant cells have most of the organelles in common, but there are some of the features which make them differ to each other. Now look at their differences. Number one difference is that cell wall is absent in animal cell while cell wall is present in plant cell. आप स्ट्रक्चर देख चुके हैं दोनों सेल्स का. एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल भी मौजूद होती है. सेकेंड डिफरेंस इज दैट वन और मोर स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल वाइल इन प्लांट सेल वन सेंट्रली लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट. एनिमल सेल में एक से ज़्यादा वैक्यूल्स हो सकते हैं क्योंकि ये वैक्यूल्स टेम्प्रेरी होते हैं, जबकि प्लांट सेल में एक सेंट्रली लार्ज वैक्यूल एग्जिस्ट करता है और ये परमानेंट होता है और सेल का 90% वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया हुआ होता है. थर्ड डिफरेंस इज दैट एनिमल सेल्स आर इरेगुलर इन शेप वाइल प्लांट सेल्स हैव फिक्स्ड शेप. एनिमल सेल की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट सेल की फिक्स शेप इसीलिए ही है क्योंकि इनके पास सेल वॉल मौजूद है. इस वजह से उनकी प्रॉपर या स्पेसिफिक शेप होती है. लास्ट डिफरेंस इज दैट क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल वाइल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एंड बिकॉज ऑफ दैट plants can prepare their food. Specialized plant cells. Before going to describe specialized plant cells, I would like to define specialized cells first. Many cells have particular structures and functions. We call these specialized cells. Or specialized cell is a cell that has a structure which suits its function.
यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं, लेकिन ये सारे सेल्स एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस होते हैं। इसलिए उन मुख्तलिफ़ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह के सेल्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। All multicellular organisms have specialized cells. So start with the specialized plant cell. And first one we have root hair cells. Root hair cells are found under the ground. Function: the main function of root hair cell is to absorb water and minerals from the soil. Adaptation: एडेप्टेशन का मतलब क्या है कि एडेप्टेशन का मतलब ये है कि सेल्स आर डिज़ाइन सूटेड टू देयर फंक्शन, यानी कि सेल को उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि हम स्पेशलाइज सेल्स की बात कर रहे हैं। तो अब हम इनकी एडेप्टेशन में देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको एक इलोंगेटेड रूट हेयर सेल नज़र आ रहा है। तो रूट हेयर सेल्स आर डिज़ाइन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो इसका इलोंगेटेड स्ट्रक्चर क्या करता है कि प्लांट में से सॉइल में से ज़्यादा मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को इनलार्ज कर देता है। इसके साथ साथ आपको एक लार्ज वैक्यूल नज़र आ रहा है। इट्स लार्ज वैक्यूल अलाउज टू ब्रिंग मोर वाटर इनटू द सेल। तो इस लार्ज वैक्यूल का पर्पस ये है कि सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो आ जाए। पैलिसेड सेल्स. Palisade cells found in the top surface of the leaves. Function: photosynthesis. They are the main site of photosynthesis. Now their adaptation: maximize photosynthetic efficiency. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहे हैं। तो इन बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से पैलिसेड सेल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक लार्ज वैक्यूल भी नज़र आ रहा है। तो देयर लार्ज वैक्यूल restrict chloroplast to a layer near the outside of the cell where they can be reached by light more easily. यानी कि ये जो वैक्यूल है ये क्लोरोप्लास्ट को आउटर लेयर से करीब होने के लिए बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ताकि क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल आउटर लेयर के करीब रहे, ताकि सनलाइट जो है वो ईज़िली उन क्लोरोप्लास्ट में पेनिट्रेट कर जाए। और जितना सनलाइट जो है क्लोरोप्लास्ट ट्रैप करेंगे उतना ही एफिशिएंटली प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकेगा। स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स. देयर आर ओवर 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, लाइक नर्व सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, किडनी सेल्स एंड सो ऑन. Here we are looking at the 3 different examples of specialized animal cell. And first one we have red blood cells. Function: their function is to carry oxygen all over the body. Adaptation: biconcave shaped to give large surface area for absorption of oxygen. Look at its diagram. They are round, disc shape and biconcave shape. बाइकॉनकेव का मतलब क्या है कि जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि डिस्क की टॉप सरफेस भी और जो बॉटम सरफेस है दोनों जो है वो कॉनकेव है, यानी कि दोनों कंप्रेस्ड हैं। तो इस शेप को हम क्या कह रहे हैं कि दे आर बाइकॉनकेव शेप. दिस शेप क्रिएट लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज. इट हैज़ अ रेड कलर पिगमेंट विच इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन एंड इट कैन कैरी ऑक्सीजन. Beside that, they have no nucleus, so more space for hemoglobin, so more oxygen. Next we have nerve cell. Function: its function is to carry messages around the body. Adaptation: long and thin to carry impulses from one place to another. जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि दे आर लॉन्ग एंड थिन एंड देयर आर लॉट्स ऑफ डेंड्राइट्स. यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्री के ब्रांचेस की तरह डेंड्राइट्स नज़र आ रहे हैं. तो इन डेंड्राइट्स का काम क्या है? डेंड्राइट्स अलाउ द नर्व सेल्स टू कनेक्ट टू द लॉट ऑफ अदर नर्व सेल. यानी कि इतने सारे डेंड्राइट्स हैं तो ये इतने सारे दूसरे नर्व सेल्स के साथ कनेक्शन बनाने में हेल्प आउट करते हैं या अलाउ करते हैं कि नर्व सेल दूसरे नर्व सेल्स के साथ कनेक्ट हो सकें. इसके साथ साथ आपको एंड में नज़र आ रहा है नर्व एंडिंग्स.
Its nerve endings release chemical messengers that will cause an electrical impulse to be carried to the next nerve cell. Next, we have ciliated epithelial cells. Ciliated epithelial cells are found in the lining of nose, throat, and windpipe. Adaptation: they are adapted for the transportation of mucus in the human respiratory system. अब इनको ciliated epithelial cells ciliated क्यों कहा जा रहा है? Because in our upper respiratory tract there are hair-like structure which are called as cilia and they keep on moving. और जब ये मूव करते रहते हैं तो इनकी मूवमेंट से जो म्यूकस है विच इज़ अ ग्रीसी सब्सटेंस, ये इस ग्रीसी सब्सटेंस की वजह से क्या होता है कि जो हमारे जो नोज़ है और जो हमारे विंड पाइप है, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो मॉइस्ट रहता है. तो म्यूकस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए सीलिया की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है. तो सीलिया की मूवमेंट से ये म्यूकस जो है वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है. इसके साथ साथ जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी ब्रीथिंग के साथ, इनहेल्ड एयर के साथ बहुत सारे माइक्रोब्स, डस्ट पार्टिकल्स वो भी एंटर हो जाते हैं. तो सीलिया जो है वो उन माइक्रोब्स और उन जर्म्स पार्टिकल्स को अपनी मूवमेंट की वजह से आगे हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वहाँ तक ये उनको आगे जाने नहीं देता. तो उनकी मूवमेंट से जो ये माइक्रोब्स हैं वो बाहर ही निकल जाते हैं. इसके साथ साथ सीलिया आर ऑल्सो फाउंड, ciliated epithelial cells are also found in the lining of oviduct for the movement of the eggs. Unicellular and multicellular organisms. As you know that all living beings are made up of cells, and on the basis of number of cells there are two kinds of organism. Number 1, unicellular organism, and number 2 is multicellular organism. Now let's have a look at the first one, unicellular organisms. Uni means one and cellular means cell. So those organisms whose bodies are made up of only one cell, they are called as unicellular organism. For example, amoeba. Now the multicellular organisms, multi means many. So those organisms whose bodies are made up of many cells, they are called as multicellular organisms. For example, mushroom. Differences between unicellular and multicellular organisms. Let's have a look at their first difference. Unicellular organisms are made up of only one cell, while multicellular organisms are made up of many cells. यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी हुई होती है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं. Second difference is that they cannot be seen with naked eye, while most of multicellular organisms can be seen with naked eye. क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं और उनका साइज़ इतना छोटा होता है कि हम उन्हें अपनी ज़ाहिरी आँख से नहीं देख सकते, जबकि बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, क्योंकि उनका साइज़ इतना बिग इनफ होता है कि वो हमें ईजिली अपनी आँखों से दिखाई देते हैं. Number 3 is all body functions are performed by a single cell, while body functions are performed by specific types of cell. यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जितनी भी बॉडी फंक्शंस हैं, लाइक एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, वो सारे के सारे सिंगल सेल के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में स्पेसिफिक टाइप्स के सेल्स मौजूद हैं जो हर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं. मतलब कि अगर रिप्रोडक्शन है तो रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं वो अलग तरह के हैं. अगर एक्सक्रीशन हो रही है तो एक्सक्रीशन में जो इन्वॉल्व सेल हैं वो सेल अलग तरह के हैं. तो इस तरह से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास स्पेसिफिक टाइप्स के सेल्स मौजूद हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. नंबर 4 डिफरेंस इज दैट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल while body organization is complex in multicellular organisms. क्योंकि वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है, बहुत छोटा साइज़ है, इसलिए सिंपल सी बॉडी है.
जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन, एज यू नो दैट कि ह्यूमन बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, इस तरह से इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स किस तरह से है कि जब सिमिलर सेल्स का ग्रुप मिलता है तो वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, टिश्यूज़ फॉर्म कर लेते हैं। इसी तरह से जब डिफरेंट टिश्यूज़ ग्रुप एक साथ जॉइन होते हैं या ग्रुप फॉर्म करते हैं तो वो ऑर्गन्स बना लेते हैं। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स कम टुगेदर, दे फॉर्म सिस्टम्स, एंड डिफरेंट सिस्टम्स कम टुगेदर एंड फॉर्म होल ऑर्गेनिज्म। इस तरह से जो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, वो कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट लेस एनर्जी एंड फूड आर रिक्वायर्ड। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्योंकि बहुत छोटे हैं साइज़ में, इसलिए उनको बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है और बहुत कम फूड चाहिए होता है। वाइल मोर एनर्जी एंड फूड आर रिक्वायर्ड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं, इसलिए हर सेल को एनर्जी चाहिए, हर सेल को फूड चाहिए, इसलिए वहाँ पे उनको एनर्जी और फूड वो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। नेक्स्ट जो लास्ट में आप डिफरेंट एग्जांपल्स देख रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास अमीबा है, यूग्लिना है, क्लोरेला है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर आप एग्जांपल्स देखें तो इसमें हमारे पास ह्यूमंस, रोज, इंसेक्ट्स, मशरूम्स। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। You know that cells are pretty smart. They know their families and want to hang out together with them. And like all families have names, cell families have names too, called tissue. So we can define tissues as a group of similar cells with similar shape and function are called tissue. Depending on which part of the animal or plant body they live, they have special names like muscle tissue, nerve tissue, epidermal tissues, and so on. So let's start with the plant tissues. And first one we have epidermal tissues. Epidermal tissues are found on roots, stem, leaves, and other parts of plant. Composition: they are made of flattened cells. Function: they prevent plant from damage, water loss, and infections. So epidermal tissues are covering tissues or protecting tissues, and they almost cover the entire body of the plant. In some cases, epidermal cells form a thick layer which prevent the plant from excessive loss of water, means from drying up, and protect the plant from damages or injuries. तो एपिडर्मल टिश्यूज़ जो हैं इन्होंने प्लांट की पूरी बॉडी को कवर किया होता है, और एपी मीन्स होता है आउटर और डर्मल मीन्स होता है स्किन। तो जो आप प्लांट की जो आउटर कवरिंग है, आउटर जो लेयर है, वो एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं। तो एपिडर्मल टिश्यूज़ का काम क्या है कि प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, और ये प्रोटेक्टिंग टिश्यूज़ हैं एंड दे कवर ऑलमोस्ट whole part or all part of the plant body. Next we have photosynthetic tissues. Photosynthetic tissues are found in leaves and green parts of a plant. Composition: palisade cells with lots of chlorophyll. Function: their function is to make food for the plant. जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़, ऑब्वियसली इनका फंक्शन क्या होगा कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ जो हैं ये पैलिसेड सेल से बने हुए हैं। पैलिसेड सेल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि पैलिसेड सेल्स के पास एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट होता है, और वो एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ कर देता है। तो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ की जो कॉम्पोजिशन है वो पैलिसेड सेल्स है, और पैलिसेड सेल्स की वजह से फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो फोटोसिंथेसिस को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव सपोर्टिंग टिश्यूज़. Supporting tissues are mainly found in the stem of plant. Composition: they are made of cells with thickened walls. Function: they provide support and strengthen the plant. जैसे कि इसके भी आपको नाम से पता चल रहा है कि supporting tissues are responsible for support the plant. फॉर सपोर्टिंग द प्लांट, ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और इनकी कंपोजिशन ऐसे सेल्स हैं जिनकी सेल वॉल या जिनकी जो वॉल है वो थिक है, एंड दे आर मेनली फाउंड इन द स्टेम
क्योंकि आपको पता है कि प्लांट की पूरी बॉडी को जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो प्लांट का जो पार्ट है वो स्टेम है. तो supporting tissues are mainly found in the stem of plant. Animal tissues. Although we animals are such a bunch of complex creatures, we are basically made of just 4 types of tissues. But here we are discussing about 3 types of animal tissues. And first one we have epithelial tissues. Epithelial tissues are found in the surface of animal's skin and lining the tubes and other spaces inside the animal's body. Composition. They are made of sheets of cells. Function. Their function is to protect the underneath structures. Basically, epithelial tissues are the covering and protecting tissues of the body, and they cover most organs and cavities within our body and protects these organs from the external environment. Next one we have nerve tissues. Nerve tissues are found in brain and spinal cord of an animal. Composition. They are composed of a network of nerve cells or neurons. Function. Their function is to carry messages from one part to another part of the body. Actually, nerve cells, which we also call neuron cells, they come together and they form a system which is called as nervous system, and this system takes all the decisions for us. Now, muscular tissues. When you think muscular, you think movement. Muscular tissues are found in the limbs and walls of muscular organs like stomach, heart, etc. Composition. They are made up of bundles of muscle cells. Function. They contract to bring about movement in the animal's body. Actually, muscular tissues are made up of a special type of protein which helps in movement, and this protein is called contractile protein. These proteins contract and relax and then cause movement. Muscular tissues are also found attached to bones of our body. Review of Lecture 1. In this lecture, we discussed about cell and its parts, structure of plant cell and animal cells and their differences, unicellular and multicellular organisms and their differences, specialized plant cell and animal cells, tissues, plant tissues and animal tissues.